चलो Hello, यहाँ पे good. रुको। Hello, guten Morgen. Can you hear me? Yeah, okay. Wait, I'll share the screen. Is the screen visible? Yeah, okay, very good. आपने ट्राई किया वो जो यूट्यूब का आपने पूछा था जो फॉर लिसनिंग? Yeah, ma'am. That and Yeah. Netflix I am using actually with German Okay, okay. audio and English subtitle. Okay, okay, very good. Perfect. Okay. So, today we'll do some revision part, and in that, there on screen you can see that there are some pictures, and you have to fill that. Das ist eine Frau. Like in the first sentence, we can see a female, so we have to make structure a sentence that das ist eine Frau. Similarly, in the second picture there are people, so we'll say frame the sentence as das sind, right? Ist is for singular, sind is for plural, so das sind Männer. Then next, in the next picture we can see Bahnhof. In next picture what we are seeing in D, Zug. so yeah. So in similar way, you will you be able to complete all the sentences either using das ist oder das sind, and then जो भी कुछ सामने दिखेगा जैसे बानहॉफ है, Zug है, Mädchen है, Handi है, accordingly you will have to write it. Okay, please complete them, write in your notebook, and then we'll read all the things together. Okay.
10. Would be the word for the people in G. So that is बॉयज करके हमें बोलना है ना. सो टू बॉयज इसलिए युंगेन. एक के लिए युंग होता है, देन प्लूरल विल बी युंगेन. J is actually singer. Okay, please read from C. Das ist ein Bahnhof. Yeah, Rishitesh. Uh, das ist
Eine Zug. Eine. Zug. Okay. Warum eine? Die Zug. D, I guess. D. Okay. Der, Okay. der Zug. So, ma'am, So, eine. ein. Das ist ein Zug. Ja. Then das ist eine Mädchen. Ja, Like that. sehr gut. Das ist äh, eine Handy. Ein Handy. Das Handy. Okay. Then das ist, nee, das sind Jungen. Ja, richtig. Then das ist ein Mann. Ja, okay. Das ist eine Frau. Ja, sehr Then gut. Und dann, actually, it is with reference to some text, so that is a Verkäuferin. ma'am, I didn't get it. Verkäuferin. Remember meaning of this word? Sell. Uh, Correct. Correct. Ja, so das ist eine Verkäuferin. then das ist eine Sängerin. Ja, Das ist ein Kind. ja, richtig. Das Kind, so das ist ein Kind. Das ist ein Fotograf. Ein oder das sind. Oder you can see das sind a Reporter. Okay. Okay, So das sind so das Reporter. photo. Yeah, that is also correct. Because there are many people having camera with it, so das sind. Okay. Okay, then in the next slide. Yeah. This was a poem that we have already seen. We have learned this poem. So in that there were people who were laughing or people who were going to travel, etc. That was the poem. On that poem, this is the exercise. Exercise में बस आपको ये सिर्फ देर दी दास जो भी कुछ होगा वो ऐड करना है और उसके हिसाब से जो भी आपका पर्सनल प्रोनाउन होगा दैट यू हैव टू ऐड. ओके, जैसे फर्स्ट एग्जांपल में किया है देर मान लाख्ड. व्हाट डज इट मीन देर मान लाख्ड? The man laughs. Yeah, so and then next is air winked. So air winked, winken is yeah. Do you remember winken? हमने जो पोएम देखी थी अब मेरे पास वो एक्चुअली लैपटॉप के ग्लिच की वजह से स्लाइड नहीं है बट उसमें ऐसे एक इफ यू कुड रिमेम्बर वो एक पिक्चर था जिसमें एक ट्रेन दिखाई गई थी फिर वहां पे बहुत सारे लोग थे एक स्टेशन था स्टेशन पे वो लोग एक दूसरे को हाई बाय कर रहे हैं फिर वहां पे कुछ स्टॉल्स दिखाई दे रहे थे. So there were different emotions which were given in that picture. तो ऐसा था तो उसमें एयर एयर विंक्ड ऐसा किधर तो था सो विंकन इज बेसिकली टू वेव योर हैंड. ओके, या तो वो विंकन वाला वो ऐसे पिक्चर वाला था. फिर ऐसे यू हैव टू कंप्लीट. अब जैसे अगर वो भी याद नहीं है मतलब पिक्चर अगर याद भी नहीं है तो भी चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं ढूंढती हूँ अगर मुझे मिलता है तो इन द मीन टाइम. बट जो आपको एक्सरसाइज करना है उसमें बस यू हैव टू डू दिस दैट जो देर दी दास है अकॉर्डिंग टू जो सेंटेंस है वो हिसाब से उसमें बस पुट करना है एंड वो हिसाब से उसका जो पर्सनल प्रोनाउन आएगा वो. ओके जैसे देर था इसलिए एयर विंक्ड किया है सिमिलरली यू हैव टू डू फॉर रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस. In the meantime, I'll try to search for that picture.
Yes, I received that photo on the internet. Actually, if you have seen that picture, then it is good. Yeah, okay. Have you completed the exercise? Okay. Very good. Please read. Die Frau macht ein Interview. Sie heißt Carla. Very good. Das Mädchen lacht. Es wohnt in Berlin. Correct. Der Touristen winken. Lachen. Warum der Touristen? Touristen is plural. Ha, ein Tourist, der, die Touristen. Okay, okay. So, die Touristen winken. Ha? Sie lachen. Ja, sehr gut. Die, Next. die lachen. Reporter. Der Reporter geht. Sagt. Sorry. Ha. Sagt auf Wiedersehen. Ja, sehr gut. Mhm. Sängerin singt. Sie Ha? ist glücklich. Glücklich, ja, sehr gut. Der Junge kommt. Er sagt Guten Tag. या sehr gut. और एक बात बताती हूँ जो टूरिस्ट एंड विंकेंड के टाइम पे हुआ ना
इफ यू डोंट नो दैट टूरिस्टन मतलब प्लूरल है, ऐसा हमें हर वर्ड तो हमें पता नहीं होगा नेचुरली, तो अगर वो प्लूरल है सिंगुलर है पता भी नहीं चलता ना, तो भी वर्ब से हमें क्लू मिल सकता है। जैसे यहाँ पे विंकेन यूज किया है, सो विंकेन इज यूजुअली यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, राइट। अगर प्लूरल में भी नहीं होगा तो भी जी में विंकेन आता है, मतलब कैसे इश विंकर, दू विंक्स, एरजीएस विंक्ड, वियर विंगेन, विंकेन। ओके, तो या तो प्लूरल में आएगा या तो फिर जी के लिए आएगा। तो अगर प्लूरल का है तो इसलिए प्लूरल में स्ट्रेट आउट वो दी ही आएगा। ओके, ऐसा अगर वर्ड का पता नहीं है तो वर्ब से हम लोग ये कर सकते हैं कि कैसा आ सकता है। क्योंकि जब एग्जाम अगर कोई देने जाओगे ना तो वहां पे नॉट नेसेसरी कि कोई वर्ड में कुछ रेफरेंस का कुछ हो ही वहां पे, ठीक है। रेफरेंस नहीं होगा तो भी ऐसे रैंडमली कुछ भी पिक करके वो डाल सकते हैं। सो देर दे जस्ट सी दैट वेदर यू नो कि कौन से वर्ड के लिए कौन सा आर्टिकल यूज होता है। फिर मतलब वर्ब से आप गेस कर पाते हो क्या, फिर अगर वर्ब का चेंज करने के लिए बोलते हैं तो वो कैसे चेंज कर रहे हो, या फिर उसका पर्सनल प्रोनाउन कैसे यूज हो रहा है। सो मल्टीपल चीजें होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि देर दी दास में से कुछ तो दिया होता है, आगे का वर्ड जो है वो आपको थोड़ा सा रेफरेंस देख के लिखना होता है कि रेफरेंस का पैराग्राफ दिया है, फिर उसके हिसाब से कुछ चेंजेस किए गए हैं क्वेश्चंस में, और देर दी दास दिया है बट जो पर्सनल का नाम है जैसे यूंगन हो गया, मेंशन हो गया, इसमें कुछ तो चेंज कर दिया है, सो यू हैव टू पिक दैट वर्ड। तो जैसे ये हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, सिमिलरली वहां पे भी वही लॉजिक अप्लाई करके यू हैव टू डू। ओके। देन इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज, हाँ, और आपको प्रैक्टिस करनी है ना तो एक और चीज आप यूज कर सकते हो, दैट इज लगूना करके एक टेक्स्ट बुक आता है जर्मन का। आई विल राइट द नेम इन द चैट बॉक्स, लगूना। ओके, सो इसका मतलब वर्जन्स होते हैं, जैसे A1 लेवल के लिए हो गया, फिर A2 लेवल के लिए हो जाता है। तो उसके दो बुक्स होते हैं, एक इज कोर्स बुक एंड द सेकेंड वन इज अर्बाइट्स बुक। ओके, कोर्स बुक में जो भी हम लोग पढ़ते हैं ना वो सब पढ़ने के लिए दिया हुआ होता है, एंड अर्बाइट्स बुक में एक्सरसाइजेस होते हैं विच यू हैव टू कंप्लीट। ओके ओके, मैम, दोनों का नेट जुआक वाला। क्या हुआ? मैम वो नेट जुआक वाला लिया था मैंने, तो उसका A1 किया था मैंने। ओके ओके, हाँ, नेट जुआक मतलब कोई भी आप, गोथेक इंस्टीट्यूट का, गोथेक का अच्छा, प्रॉपर। ज्योति का है। ओके, दैट इज ऑल्सो नाइस। ये भी इसका पीडीएफ है मेरे पास, अगर मुझे मिल, एक्चुअली मेरे लैपटॉप को थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, अगर पीडीएफ मिलता है तो आई विल शेयर दैट विथ यू। ओके अर्बाइट्स बुक का पीडीएफ नहीं है बट वो ऑनलाइन अवेलेबल है। ओके मतलब डाउनलोड नहीं किया है मैंने, बट है वो ऑनलाइन भी, तो वो भी यूज कर सकते हो। फिर अगर कोर्स बुक के लिए यूजुअली खरीदने की जरूरत नहीं है, यू कैन यूज दैट ऑल्सो। तो दोनों में से यू कैन लर्न। ओके ओके, मैम। फॉर A2, आपने A2 दिया, मतलब A2 लेवल के लिए प्रिपेयर कैसे किया था आपने? A2। सिमिलरली ये A2 का भी लगुना वाई होता है, मैंने उसी से किया है। एक्चुअली आई हैव नॉट गिवन दिस A1 एंड A2, आई हैव कंप्लीटेड द डिप्लोमा फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी। ओके या तो मैंने ये लेवल्स नहीं दिए हैं A1 A2, बट उनका जो सिलेबस होता है दैट इज सेम फॉर डिप्लोमा इन जर्मन लैंग्वेज टिल मतलब A2 लेवल जितना होता है वो पढ़ाई, ऐसा। तो वी वर रेफरिंग दिस लगुना फॉर द सर्टिफिकेट फॉर द फर्स्ट कोर्स, फॉर द फर्स्ट ईयर वी हैव यूज्ड लगुना A1 und Arbeitsbuch and Kursbuch. For second year we have used A2 Laguna, Kursbuch und Arbeitsbuch। तो ऐसा था। ओके मैम। हाँ, तो ग्योथा के लिए भी एक्चुअली मतलब जितने भी लोगों को मैं पहचानती हूँ जिन्होंने A2 दिया है, उन्होंने भी ये बुक रेफर करके अच्छा स्कोर किया है। तो क्योंकि उसमें सीडी भी होती है, सो यू कैन लर्न फ्रॉम दैट सीडी ऑल्सो, मतलब वो सुन के भी उसमें से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो उतना जो सुनने वाला एक्सरसाइज होता है ना वो वहां से कंप्लीट हो जाता है। या मैम। ओके, या then next is again similar, so you can just take the screenshot of that and you can complete it on your own as ओके home as a part of homework, क्योंकि उसमें सेम ही है, आइन आइन जैसे हमने पहले इसमें किया था वैसे। सो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेमिंग का है थोड़ा ये एक्सरसाइज। सो आप डायरेक्टली भी पढ़ सकते हैं, हम लोग लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अलग अलग फॉर्मेट में वो चेंज करके वर्ड्स दिए हैं पूरा सेंटेंस, सो यू हैव टू फ्रेम इट एज अ क्वेश्चन।
ओके, जैसे वोंट्स टू वो डू ऐसा था, सो एज अ क्वेश्चन व्हाट इट विल बी, वो वोंट्स टू डू, और फिर आप उसका मीनिंग भी बता दीजिए साइमल्टेनियसली मुझे. Uh, where do you live? I guess. Wants to. हाँ, वो वोंट्स डू, या करेक्ट. Then देन नेक्स्ट. was spielen Sie? करेक्ट. मीनिंग. What do you play? या. sehr gut. नेक्स्ट. Uh, wer sind Sie? या. वेर. रिमेम्बरिंग ऑल दोस वेर, वास, woher, wohin. Actually I Where forgot. is who? नहीं, where is who? Okay. Yeah. So who are you? Where sind Sie? Then next. Then नहीं, वो arbeitest du. Where do you Yeah. work? Correct. Very good. Then was magst du? Uh, Yeah. what do you like? I guess. Marks. Marxist. What do you do? Like क्या करते हो तुम, ऐसा जो पूछते हैं वैसा. हाँ. तो ऐसा इसका जनरली आंसर क्या दोगे अगर ऐसा सामने से कोई पूछता है, व्हाट्स मार्क्स डू? Uh, uh, ich was magst या. du? स्टूडियर. Okay. Ja, if you're a student, oder ich bin Student. Ich bin ein Student oder ich studiere. Okay. Ja. Then Next. one common Z. When are you coming? Correct. Then wie heißt du? Hmm. Wie heißt du? Ma'am, Hyson. Okay. What's Correct. Heißen is the first verb that we have learnt. what's your name? Correct. Very good. Uh, ish. Where bin ich? Yeah. And meaning? Where are you? No. Where is for who? Oh, okay. Okay. And Who ish are है तो you? you नहीं आएगा. नहीं, you कहाँ से आ रहा है? Ish is I. हाँ. मतलब एकदम मीनिंगलेस क्वेश्चन होने वाला है वो, बट कहीं पे यूज हो सकता है, जैसे पोएम में वगैरह, हु एम आई. Okay. Okay. या, इट्स लाइक हु एम आई. So it is not a question, but it is like, मतलब रेगुलर कॉन्वर्सेशन का क्वेश्चन नहीं है. नेक्स्ट भी सेम ही है. कॉम्स टू डू बाइड. Bald. तो अब जैसे दो जो दिफ्रागन ऐसा ही है, वी हाइसन दिफ्रागन, मतलब यू हैव टू जस्ट बिल्ड द सेंटेंसेस, कौन सा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है. दो क्वेश्चन जो ऊपर फर्स्ट सेट में है, फिफ्थ सेट वाला और सिक्स सेट वाला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू? Um, mm, oh, okay. Not. दोनों क्वेश्चन में कुछ तो डिफरेंस दिख रहा है, तो वो क्या है? Verb is in. Uh, okay. In first one, verb is used, and in that one, no. In second one, verb is used first, and in first one, that which questions is used first. या करेक्ट. सो मतलब फर्स्ट में जो वो, वास, वेर, ये सब यूज किया है ना, Yes. वास, Yes. वान, हाइसन, वेर, तो ये सारे कौन से हैं? फाउ फ्रॉगन है. Wow. Again, हाँ. जैसे हमारे डब्ल्यू डब्ल्यू इंग्लिश में क्या होता है, डब्ल्यू एच वर्ब क्वेश्चंस Yes, होते हैं, जो वेर, वाई,
ऐसे स्टार्ट होते हैं, वैसे वाले हैं। एंड सेकंड इज या ऑर्डर 9 वाले, मतलब येस और नो क्वेश्चन। जैसे इंग्लिश में दो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, एक WH और एक ये, राइट। तो वैसे यहाँ पे भी वे फ्रागेन, मतलब W से स्टार्ट होने वाले, उसमें एक एक्सेप्शन है हाइसन। जैसे इंग्लिश में एक्सेप्शन होता है हाउ, W से स्टार्ट नहीं होता है वर्ड, बट वो WH टाइप के क्वेश्चंस में ही आता है। वैसे ही वे फ्रागेन में यहाँ पे भी सब वार, वेन, वोहिन, वोहेर, वास, वो यही आएगा। इसमें एक एक्सेप्शन होगा हाइसिन, जो सारे वे फ्रागेन है वो फर्स्ट वाला टाइप था। एंड सेकंड इज येस और नो क्वेश्चन, जैसे इंग्लिश के होते हैं, सिमिलरली या ऑर्डर 9 टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो सेकंड अगर क्वेश्चन देखोगे तो वहां पे उसका आंसर हम लोग आइदर या देंगे या तो 9 देंगे। फर्स्ट में हम लोग वैसा नहीं दे सकते, वो वॉल्स डू का आंसर मैं या ऑर्डर 9 नहीं दे सकती। आई विल हैव टू टेल समथिंग, द नेम ऑफ द प्लेस, राइट। देन Yes. वास स्पीलन, मतलब किसी गेम का नाम बताना पड़ेगा, ओनली या ऑर्डर 9 विल नॉट डू। बट सेकंड का अगर तुम देखने चाहोगे तो लेब्स्ट डू इन बर्लिन, सो डू यू लिव इन बर्लिन, सो आई कैन सिंपली से या ऑर्डर 9। यही क्वेश्चन को अगर मैं ऐसा करती हूँ कि वो लेब्स्ट डू, तो फिर वो वेफ्रागन हो जाता है। Okay. क्लियर? या Yeah. सो नाउ जैसे ये यहाँ पे दिया है ना हमें, सिर्फ अब ये एक्सरसाइज में कैसा है कि इन बर्लिन डू लिव्स, अब इतना आसान सवाल तो तुम कोई एग्जाम देने जाओगे तो नहीं आएगा। वहां पे ऐसा हो सकता है कि इन बर्लिन को कट कर दिया है, नाउ कन्वर्ट दिस क्वेश्चन इनटू वेफ्रागन, ऐसा वहां पे सवाल आएगा। सो देन यू विल हैव टू रिमेम्बर कि फिर वेफ्रागन के मतलब क्वेश्चन के लिए वर्ड्स कौन से हैं पहले, तो लेब्स्ट के लिए कौन सा आएगा, तो Okay. वो लेब्स्ट डू, ऐसा फिर वहां पे क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पे सिंपली यू हैव टू रीअरेंज द वर्ड्स, ऐसा यहाँ का एक्सरसाइज है, वो कैसे भी फ्रेम कर सकते हैं, बट यू हैव टू रिमेम्बर कि वहां पे हम कैसा क्या कर सकते हैं। क्लियर? Yeah. या वेरी गुड। सो कंप्लीट दिस ऑल्सो, लाइक जो जैसे हमने पहले पढ़ा वैसे ये भी वाला पढ़ लो। Okay. Comes world. कम्स डू बाइड, या Um, विल यू कम इमीडिएटली, I'm so ऐसा ऐसा bald. इमीडिएटली। और lives do in Berlin. हम्म, Do you live in Berlin? करेक्ट। In Ar arbeitest du nicht? हम्म, Uh, don't you work? Like करेक्ट, वेरी गुड, परफेक्ट। uh, yours music. नहीं. हाँ, हाँ, योर्स yours डू म्यूजिक, music. Okay, योर्स yours. डू म्यूजिक, Okay, okay. डू यू, Do you hear music? करेक्ट। Then spielst du Klavier? Do you play piano? Then करेक्ट, heißt du Sarah? Are you Sarah? करेक्ट। Then glücklich, du bist. Are you happy? Nine, nine. Glucose is happy. So, which is verb in this sentence? Bist. Okay, Yeah. So, okay. Bist du glücklich? sehr good. Then reist. नहीं, gerne. Uh, du reist. Nine. Verb is rise. So, first rise ही आएगा. Ma'am, gerne means Gerne means to like. Okay. अब यहाँ पे नाइन, राइस ही पहले आएगा, क्योंकि कॉन्जुगेट कौन सा वर्ड, अगर यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, जैसे देखो गेरना में भी हम ये ऐसा बोल सकते हैं कि गेरना इज टू लाइक, तो वो वर्ब के हिसाब से हम यूज करेंगे क्या, बट कॉन्जुगेट कौन सा वर्ब किया है वो देखो, डू के हिसाब से। du reist.
Okay. राइस्ड, तो इसलिए हमें राइस्ड ही पहले लाना है, तो राइस्ड डू गेर्न, सो डू यू लाइक टू ट्रैवल। Okay. राइजन इज टू ट्रैवल। अगर वहां पे राइजन ऐसा होता ना, राइजन ये वर्ब मतलब राइजुंग या राइजन ये नाउन फॉर्म में आ जाता, तो गेर्न को हम लोग कॉन्जुगेट, मतलब गेर्न इज यूजुअली कॉन्जुगेट नहीं होता है, गेर्न इज लाइक, तो इसलिए राइज टू डू गेर्न, डू यू लाइक टू ट्रैवल, ऐसा वहां पे हो जाएगा। Okay. Okay. ओके। Okay. हाँ। Yeah. ओके, सो next you can just take screenshot of this and you can complete it at home. It is easier, मतलब जो हमने अभी तक जितने भी वर्ड्स किए हैं ना, उसको सिमिलरली कौन से वर्ड्स कौन से एक साथ जाएंगे ऐसे वाले वर्ड्स यूज करने हैं। जैसे ट्राउरिश के साथ वाइनन है, ट्राउरिश इज इन ट्रॉमा, सो वाइनन इज टू क्राई, सो इसलिए वो आएगा। ग्लूक्लिश के साथ लाखेन आएगा, क्योंकि ग्लूक्लिश इज समथिंग रिलेटेड विद हैप्पी, सो लाखेन इज टू लाफ। Okay, ma'am. ओके, सो जहाँ पे जैसा वर्ड जाता है यू कैन राइट इट। एंड देन जो नेक्स्ट है बिल्डन जी दी नेगेशन, मतलब आपको निगेटिव सेंटेंस क्रिएट करना है। इफ यू कैन डू इट प्लीज डू इट एट होम, अदरवाइज विल टेक इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। अर्बाइटस डू, तो इसका आंसर यू हैव टू गिव इन निगेटिव सेंटेंस, सो इश अर्बाइटर निश्ट। तो सिंपली इसमें हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अब जैसे जो सवाल आएगा दू के लिए होगा तो इश आंसर आएगा, जी के लिए होगा तो वैसे हिसाब से जी के लिए, एर के लिए तो एर के लिए आंसर आएगा। एंड देन जो वर्ब होगा दैट विल गेट कॉन्जुगेटेड अकॉर्डिंग टू योर पर्सनल प्रोनाउन, एंड सिर्फ हमें निश्ट ऐड करना है। मतलब Okay. इज जी ग्लूक्लिश ऐसा सवाल है, मतलब इज शी हैप्पी, so you have to answer that no, she is not happy. So 9, sie ist nicht glücklich. That's it. Okay, अगर होता है तो मतलब if you can do it and then we'll read it in the next lecture. Otherwise we'll simply do it. But जो 8th exercise है, please take a screenshot of it and do it as a homework. वो भी एक कर लो, और ये वाला भी, थर्ड वाला जो है Das ist ein Polizist, er lacht. Okay. Okay. Third. Okay. Have you taken screenshots of both? Yes, ma'am. Okay then. Danke Okay. und tschüss. Danke. Tschüss.